GameCraft Bootcamp Session 1. So let me introduce myself. I am Mohammad Musa, doing Bachelor's in Computer and Information Sciences from PIEAS and currently serving GDSC PIEAS as a game developer college. So let us start. Uh, Anyone who know what is game? Do you know what is game? Any activity that one engages in for amusement, fun, मतलब कुछ भी ऐसी चीज जिसमें लोग रिक्रिएशन ढूंढते हैं, इनर मेंटल पीस वगैरह ढूंढते हैं, दिस इज द गेम. गेम में बी द फिजिकल लाइक स्पोर्ट्स जो आप क्रिकेट और हॉकी जो हम ओपन ग्राउंड वगैरह में खेलते हैं, एंड इट्स मे बी डिजिटल गेम्स लाइक द गेम्स वी प्ले इन आवर मोबाइल्स लाइक PUBG, FIFA, and many more. Okay, so why people choose game development and design? So the basic purpose behind this career is they are passionate about this profession. People want to enter in this game development field because of their passion for playing games. But this profession is not only up to the gameplay. मतलब उनको पैशनेट होना चाहिए कि गेम डेवलपमेंट वगैरह भी करें, ठीक है, and they grow up with the love of gaming and want to be a part of creating the experiences they enjoy. So by the way, passion is necessary for every field, but in game development or game design, more passionate or more passion is needed by the game developer, because if he or she is not passionate, maybe he will exhaust it soon in this industry. So creativity is also the major thing in this career of game development and design. Creativity is needed because you have to design new games, new designs games जो कि पहले नहीं बनी हुई, ठीक है. So this is all the creativity. आप कितनी अच्छी गेम बनाते हैं, then किस क्रिएटिविटी का क्या क्रिएटिविटी का लेवल था आपने जो गेम बनाई, ठीक है, और फिर आपने वो मार्केट में लॉन्च की. इट्स ऑल अबाउट द क्रिएटिविटी. So in game development or game design, it's offer a technical and artistic challenge. So here creativity is needed. So developer can express their creativity through storytelling, art, music, and interactive designs of like 3D modeling. Okay, and industry benefit. So as a student, everyone say what is its industrial approach, क्या है industry में jobs हैं, ये प्रोफेशन अगर है तो मतलब एज अ प्रोफेशन इसको अडॉप्ट करते हैं तो पैसा है, मार्केट मनी इनफ्लो वगैरह क्या है, ये तो हर चीज में देखी जाती है. सो दिस गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री हैज अ वास्ट इंडस्ट्री benefits. So let's move to the gaming industry revenue. So this gaming industry revenue is very vast. It's a $1 billion industry revenue. Okay, it's a $1 billion industry revenue. Okay, so the gaming industry is one of the fastest growing entertainment in the entertainment sector, and providing numerous opportunities for career advancement and financial stability. So the global market value was approximately, you can see in the slide, $159 billion in 2020, and reached to the $200 billion by 2023. And it is expected to reach at $363.20 billion by 2028. And the user is also expected to reach
1472 million in market by 2028. So as you can see, the user of this industry increases, so the revenue also increases. Or I think so. कि बहुत सी ऐसी गेम है लाइक पबजी, वेलोरेंट, जिन्होंने बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर में रेवेन्यू जनरेट किया हुआ है अपनी अपनी जो भी उस कंट्री का, जो भी जिस कंट्री ने उस गेम को डेवलप किया था. सो मैनी ऑफ यू फेमिलियर विद द लूडो स्टार गेम, जो कि इंडिया ने डेवलप की थी, और इन कोविड उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर इससे रेवेन्यू जो था जनरेट किया था. सो you can see you can realize the rise of the gaming revenue. So you can see सबसे नीचे जो कंसोल गेमिंग है उसका क्या ट्रेंड है, although it's a booming trend. ठीक है. So कंसोल इंडस्ट्री को you can see 2013 में जो बूम मिला था due to GTA Vice City game. So after arcade boom, जो हमारी गेमिंग इंडस्ट्री है, और जो कंसोल की हो, पीसी या मोबाइल, वो बूम ही उसने की है. सो पीसी इंडस्ट्रीज, पीसी गेम्स की अगर आप बात करते हैं तो माइनक्राफ्ट गेम जैसे, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ गेम पीसी को बहुत पीसी गेम्स को बहुत बूम मिला था. सो यू कैन सी द मतलब cost, total revenue, कि ये सब billions में है. No, it's a trend of mobile because everyone has their own mobile, so developer are shifted to the mobile games. uh, और ये बहुत आसान भी है मोबाइल वगैरह रखना और मोबाइल निकाल के गेम शेम खेलना. सो डेट इज वाई अभी मोबाइल गेम्स जो है बहुत ज्यादा इमर्जिंग गेम्स हैं और बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है. सो अब तो AR VR वगैरह का दौर भी आ गया है, और AI भी आने वाले, AI भी आ गया. सो ड्यू टू दिस ये सबसे ऊपर AR VR का भी ये जो ग्राफ है ऑब्वियसली ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करेगा. सो gaming industry revenue in this slide you can see categorized by country. So okay, China or United States America generated billions of dollar revenue. सो इनके प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा हैं. अगर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, मतलब इन पाकिस्तान अभी तो ये इमर्जिंग है, मतलब अभी तो ये बिल्ड अप हो रही है गेम जो है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिविटी इन आवर एकेडमिया और इन आवर होम्स, क्योंकि इसको ये समझा जाता है कि ये इट इज जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. बट यू कैन सी कि जो नंबर फर्स्ट और सेकंड कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और चाइना, उनमें प्लेयर की मिलियंस ऑफ प्लेयर्स हैं, और उनका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा वो इस इंडस्ट्री से जनरेट कर रहे हैं. एंड यू कैन से गेमिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू बाय प्लेटफॉर्म, मोबाइल गेम्स हो या कंसोल गेम्स हो या पीसी गेम्स हो, वेदर दे आर ब्राउजर गेम्स, वो भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है. ओवरऑल मतलब ये $1 billion इंडस्ट्री है, एंड इट इज मच मोर, कह लें कि आप बड़ी है, ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही है देन योर एनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वो वेदर म्यूजिक की हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, या कोई ड्रामा इंडस्ट्री हो, ये उससे ज्यादा रेवेन्यू इस टाइम पे जनरेट कर रही है. सो लेट्स मूव टू द टाइप ऑफ गेम्स. So, very basic concept you should need to understand what are the different type of games, because after this आपने you are going to develop different games, तो आपको पता होना चाहिए आप किस कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं. सो किस कैटेगरी में टाइप ऑफ गेम्स में आप जाएंगे,
So you can focus on a particular game type, और आपको मतलब ज्यादा अच्छा आप उसके ऊपर काम कर सके, and much more. The first one is the simulation video game. This is just the games that intimate real life activities. So any of you familiar with this game? ये खेली होगी आपने बचपन में. Like example, डॉक्टर ड्राइविंग, ट्रक सिमुलेटर, ये सब जो है सिमुलेशन वीडियो गेम्स हैं. मतलब इन रियलिटी हम मतलब के रियल लाइफ एक्टिविटीज में जैसे काम करते हैं, ये वैसे ही है. सो अगर आप इनको ये जो गेम्स हैं इनको देखते हैं, ये ऑफन ओपन एंडेड विद मेनी चॉइसेस गेम्स होती हैं. तो यू कैन से दिस गेम, सो बिहाइंड दिस गेम देयर इज अ कोडिंग. सो इसके पॉपुलर मैकेनिक्स जो हैं वो ये होते हैं कि अगर आपने ये गेम खेली है तो रिसोर्स को कैसे हम मैनेज करते हैं. लाइक कोई कॉइन है, उसको कैसे इकट्ठा करना है, कैसे बैलेंस करना है, कोई फ्यूल है, कोई टाइम है, उसको कैसे बैलेंस करना है. और इसमें हम सिमुलेशन वीडियोस गेम में बिल्डिंग गेम्स वगैरह आती हैं जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हाउसेस, सिटीज, लाइक सिम सिटी, सिम बिल्डर गेम्स. और लाइव सिमुलेशंस इज आल्सो द popular mechanics of this game, in which we manage the daily activities and need of character. The second one is the fighting. ये भी बहुत खेली है बचपन में. सो इसमें क्या है जी, करेक्टर फाइट ईच अदर. ये एक दूसरे को सही खूब मुक्के शुक्के मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, हेल्थ कम करते हैं. जो एग्जांपल देखें आप, टेकन और स्ट्रीट फाइटर वगैरह, these are the this is the kind of fighting आपने देखा होगा. और भी बहुत ज्यादा मतलब मोर्टल कॉम्बैट और स्ट्रीट फाइटर जैसे जिसमें करेक्टर बैटल करते हैं, वन ऑन वन फाइट यूजिंग स्पेशल मूव्स. सो इसके जो पॉपुलर मैकेनिक्स हैं वो कॉम्बो अटैक्स होते हैं, जिसमें अटैक्स करते हैं फॉर हम ग्रेटर डैमेज. मोस्टली टेकन खेलते हुए हम कहते हैं यार कॉम्बो लगाओ कॉम्बो. सो वो अटैक ऐसा होता है कि मतलब ज्यादा हेल्थ जाए, ठीक है. एंड स्पेशल मूव्स इज आल्सो द मैकेनिक ऑफ दिस fighting game, and blocking and dodging is also the popular mechanic game, जिसमें हम डिफेंड करते हैं और अवॉइडिंग करते हैं कि अगला हमसे अटैक, अगला जो नेक्स्ट कैरेक्टर है उससे हम बच सकें, ठीक है. सो एडवेंचरस गेम, ये भी बहुत से बच्चों ने खेली होगी बचपन में. So these games are just a kind of exploring, solving puzzles, and follow the sequence of stories. You can see the figure. ये games जो है adventurous game है, such as Legend of Zelda is also the adventure game, और बहुत अच्छी game है. सो हम इसमें क्या करते हैं, एक्सप्लोर अ फैंटेसी वर्ल्ड, मतलब एडवेंचर होता है हम जिसमें एक्सप्लोर करते हैं, पजल सॉल्व करते हैं, एनिमी से फाइट करते हैं, ठीक है. सो इसमें in this adventure game include a lot of exploring new things in the games and puzzle solving. So popular mechanics include in this games are explorations, जिसमें हम नेविगेट करते हैं थ्रू डिफरेंट इन्वायरमेंट, पजल सॉल्विंग, completing challenges that require thinking and logic, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसमें हम कलेक्टिंग एंड यूजेज आइटम वगैरह करते हैं, ठीक है. सो एक्शन आरपीजी और एक्शन गेम, खैर एक्शन गेम में तो ये होता है कि खुद बंदा अकेला जाता है और जाके फाइटिंग वगैरह करता है. एक्शन गेम्स में ये होता है कि हम एक अपने लाइक टीम तैयार करते हैं, फिर अपनी टीम को लेकर जाते हैं और मतलब अटैक्स वगैरह करते हैं अगले बार, ठीक है. सो लाइक विचर 3, डार्क सोल, जिसमें विचर 3 में यू कैन सी के फाइट मॉन्स्टर और मेक चॉइस दैट इफेक्ट द स्टोरी, ये चीजें होती हैं. सो
इट्स अ रियल टाइम फाइटिंग होती है जिसमें हम करेक्टर और स्किल्स को डेवलप करते हैं. सो द पॉपुलर मैकेनिक्स ऑफ दिस एक्शन आरपीजी एज करेक्टर प्रोग्रेशन, मतलब जिसमें हमारा करेक्टर जो है वो लेवल अप होता है, इम्प्रूवेबिलिटी होता है, और लोटिंग मतलब कलेक्टिंग आइटम फ्रॉम डिफीटेड एनिमी. कोई एनिमी मर जाता है उसकी कोई गनशन उठा लेते हैं, एंड completing task and mission to advance the story, और मतलब different stages हम complete करते हैं. Okay. Many of you familiar with this game, FIFA, WWE. These are the just the sport games. ये रियल लाइफ स्पोर्ट्स के ऊपर बेस होती है, ठीक है. यू कैन सी इन फीफा, ये नीचे खेल भी रहे हैं लोग. Soccer, play soccer with the realistic graphics and control. Moreover, NBA 2K is also the sport game or match mode. So, if you talk about mechanics, so team management हम अपनी मर्जी से इन स्पोर्ट्स वगैरह वाली टीम में सिलेक्ट प्लेयर्स करते हैं, स्ट्रेटजीज देखते हैं. रियलिस्टिक कंट्रोल हम सिमुलेटिंग करते हैं एक्चुअल मूवमेंट को एंड एक्शन ऑफ द स्पोर्ट. और डिफरेंट टूर्नामेंट्स और सीजन वगैरह इस गेम में आते रहते हैं जो हम कंप्लीट करते हैं लीग, और डिफरेंट अवार्ड्स वगैरह लेते हैं. सो दिस काइंड ऑफ गेम जो स्पोर्ट्स गेम है, ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है. इवन एक छोटी सी गेम मतलब generate a lot of revenue in millions or billions of dollars. So racing games, you are familiar with this racing games, या आपने बचपन में खेली भी होगी, नीड फॉर स्पीड एंड फोर्जा हॉरिजॉन. सो हम इसमें व्हीकल्स वगैरह को खूब भगाते हैं, और मतलब कि लाइन जो एक स्पेसिफिक लाइन होती है जिसमें जिस जिस करेक्टर ने या जिस प्लेयर ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया पहले, दैट इज द विनर इन दिस गेम. सो इसमें क्या चीज मतलब की होती है, फास्ट होना चाहिए. इट इज वेरी रियलिस्टिक और फन गेम. सो पॉपुलर मैकेनिक्स आर टाइम ट्रायल्स होते हैं, इसमें हमें डिफरेंट टाइम फील्ड होते हैं या उसमें पहुंचना होता है. और पावर्ड अप्स वगैरह होती है, हम आइटम्स वगैरह को कलेक्ट करते हैं ताकि वो बूस्ट अप हो जाए, जैसे नीड फॉर स्पीड में नाइट्रो कभी कभी लगाते हैं. तो इसके अलावा व्हीकल को हम कस्टमाइज करते हैं सेटिंग वगैरह में जाके. दीज आर द मैकेनिक्स. और इसके ऊपर जब यू आर डूइंग कोडिंग, तो इसके ऊपर फोकस किया जाएगा. सो पजल पजल्स गेम्स, these games challenges you to solve problem and think strategically. So कहते हैं कि if you want to sharp your mind, play a puzzle game or any game जिसमें strategy वगैरह ज्यादा हो. तो खैर टेट्रिस वगैरह और पोर्टल. टेट्रिस में यू कैन से कि अवॉइडिंग सॉरी अरेंज करके हम फॉलिंग ब्लॉक को अपनी लाइन ताकि वो एक नीचे से रिमूव हो जाए. और मतलब पोर्टल वगैरह में पजल्स वगैरह को सॉल्व करते हैं यूजिंग द पोर्टल गन. तो इसमें पॉपुलर मैकेनिक्स ये है कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन हम करते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्रिएटिंग पैटर्न टू सॉल्व द पजल्स. इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी पजल बिकम प्रोग्रेसिव हार्ड. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टेज लेवल अप होता है तो पजल भी ज्यादा मुश्किल और तेज भी होती जाती है, कभी कभी फॉलिंग जैसे ब्लॉक होते हैं. और लॉजिकल थिंकिंग इज आल्सो मैकेनिक यूजिंग रीजन टू फिगर आउट द सॉल्यूशन. First person shooter, game where you see through the character eye uh, and use gun to fight. सिर्फ आपको you can say in a Call of Duty सिर्फ एक करेक्टर नजर आ रहा है, एक गन नजर आ रही है, वही बस एज अ आई नजर आ रही है, और उसी से हमने इसमें फाइट वगैरह करनी होती है, ठीक है. सो इट्स अ फास्ट पेस्ड मिलिट्री एक्शन. सो इस पे मैकेनिक्स ये है कि अब एमिंग एंड शूटिंग वगैरह मतलब फेमस मैकेनिक जिसमें टारगेट वगैरह या फायरिंग वेपन्स को प्रिसीजन बहुत जरूरी होती है. इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट इज आल्सो, जिसमें हेल्थ वगैरह को ट्रैक करना, अपना फाइंड वे टू हील
और इसके अलावा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट फ्रॉम एनिमी फायर, मतलब कि कवर सिस्टम यू कैन सी के इसमें मैकेनिक्स हैं, ठीक है। सो प्लेटफॉर्मर प्लेटफॉर्मर मारियो गेम, लाइक जिसमें ऑब्स्टेकल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, उसको पार करना होता है, चीज़ों को कलेक्ट करते जाना होता है, और मतलब कि नेक्स्ट स्टेजेस पर मूव ऑन करते जाना है। यू कैन सी द इन द स्लाइड फिगर, इन द स्लाइड वीडियो और एनिमेशन। सो ओके, in this game you need a lot of jumping and fun and other challenges level are also uh, in this game. So popular mechanics is the jumping, jump to navigate the platform, और obstacle avoidance, मतलब कि बचना होता है enemies अगर कोई आ गया उससे कैसे उसको धोखा देना है, ये सारा एंड collectible जो चीजों को इकट्ठा करते जाना होता है इसमें। So these are the mechanics. Okay, let's talk about hyper casual design. These are the very lightweight games, और मतलब ये ओपनली मोबाइल्स वगैरह पर ही खेली जाती हैं, और इंडस्ट्री अब इस तरफ मूव कर गई है क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है, इससे रेवेन्यू जो आपका ज्यादा जनरेट होता है, और जो प्लेयर है वो इसको बार बार खेलता है ड्यू टू द शॉर्टर लेंथ सेशन, और फन गेम मैकेनिक्स वगैरह इसमें होता है। सो इट यू कैन से कि ये गेम्स जो है वो लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट मोड में खेले जाते हैं। सो हाइपर कैजुअल गेम जो है वो इंडस्ट्री में बड़ी ग्रो कर रही है। सो लोग जो है वो डेवलपर जो है वो हाइपर कैजुअल गेम्स की तरफ अब शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो इन अ शॉर्ट टाइम वो हाइपर कैजुअल गेम्स बनाते हैं एंड देन उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं एंड अर्न ग्रेट पैसा जिसको कहते हैं मनी। सो इसका मार्केट पोटेंशियल भी ह्यूज है क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाता है, सो इजीली मार्केट में अवेलेबल भी होता है, एज आई सेड यू बिफोर। सो आप, अच्छा, क्या हाइपर कैजुअल गेम आर्ट एंड थीम्स, इट्स मतलब थीम्स आर वेरी क्लियर एंड इफेक्टिव आर्ट इसमें यूज होती है। हम ऐसी आर्ट चूज करते हैं जिसको अगर कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ हम हाइपर कैजुअल गेम बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यूज कर सकें। so that is why they can reuse existing art also, so it's easy to create, और एक अच्छा खासा फिर वो रेवेन्यू जो है जनरेट वगैरह कर सकता है। सो इट्स using a modern and grounded in real life setting. It doesn't mean real life जो है वो इस मीन आप नहीं उठा देते हैं, just it's look like the real life. So हाइपर कैजुअल गेम्स के कंट्रोल्स क्या होते हैं, यू कैन जस्ट टैप करते हैं आप इस गेम में अपनी स्क्रीन को, मोबाइल को, ठीक है, अपने प्लेयर को किसी चीज से ये बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए स्वाइप करते हैं, ड्रैग करते हैं, और यूज वर्चुअल मशीन वगैरह, वर्चुअल मशीन क्या है, सॉरी, जॉयस्टिक्स वगैरह करते हैं। सो प्रोग्रेशन इस गेम में ऐसे ही होती है कि हम जैसे जैसे अपने लेवल को कंप्लीट करते जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते जाते हैं, परफॉर्मेंस पे प्रोग्रेशन है, हम जैसे जैसे अपने मतलब के लेवल को कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी, और वो करेक्टर वगैरह की परफॉर्मेंस में भी बेहतरी आती जाएगी, और ये अपग्रेड होती रहती है थोड़ा विद द टाइम। सो इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलर हाइपर कैजुअल गेम मैकेनिक्स, सो ये मर्ज इज द फर्स्ट मैकेनिक जिसमें हमने चीज़ों को जो आइटम्स होते हैं उनको कंबाइन करना होता है, मतलब कि डिफरेंट कलर के आइटम को कंबाइन करना होता है, कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन 2048 गेम हमने टाइल्स वगैरह को मर्ज करना है विद द सेम नंबर टू क्रिएट अ हायर नंबर। सो इट्स अ सिंपल मैचिंग मैकेनिक, easy to understand and satisfying to see item combine in this merge. Runner is also the mechanic ऑफ हाइपर कैजुअल गेम, जिसमें उनसे कि अगर कोई ऑब्स्टेकल आगे से स्वाइप करना है साइडों पर, उससे बचना है या जंप करना है। ओके, सो इट्स अ फास्ट पेस्ड और रिक्वायर्ड क्विक रिफ्लेक्सेस
सबवे सर्फर वगैरह आपने खेली होगी, आगे कोई भी चीज आ जाए तो यू नीड अ क्विक रिफ्लेक्सेस ताकि उस चीज से बचा जा सके, और ये एट द एंडलेस गेम प्ले। सो पजल, पजल होते हैं एक स्ट्रेटेजी, मतलब सेम होती है, ठीक है। सो इन अ पजल यू आर फेमिलियर विद द कैंडी क्रश, जो कि अपने जमाने की मशहूर गेम थी और है, ठीक है, और इसने भी बहुत सारा मतलब रेवेन्यू वगैरह जनरेट किए। सो हम पजल्स वगैरह सोल्व करते हैं बाय मैचिंग आइटम और सॉल्विंग लॉजिक प्रॉब्लम्स। सो इट्स फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट्स very addictive or often include level with increasing difficulties. Rising and falling. Uh, you're familiar with the Flippy world. Uh, it's control a character that rise or fall, avoiding obstacles. हमने बचना होता है. So it's a simple tap control, ठीक है, and often frustrating in a fun way. Endless games होती हैं ये भी, hyper casual game है. टाइमिंग में ये है कि अबे एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मिशन कंप्लीट करना होता है, ठीक है। सो टैप एट द राइट ऑफ मोमेंट टू अचीव अ गोल लाइक जंपिंग ओवर ऑब्स्टेकल इन द स्पेसिफिक टाइम। इट्स रिक्वायर दिस गेम रिक्वायर्स प्रिसीजन, गुड टाइमिंग, इजी टू अंडरस्टैंड बट इट्स हार्ड टू मास्टर। स्टैकिंग, स्टैक्स जो है वो मतलब आपने चीजों को इकट्ठा करते जाना है। ये जैसे ग्लास हैं, इस ग्लास को इकट्ठा करते जाना है और एक लंबी रो वगैरह बना देनी है, ठीक है, सिमिलर आइटम की स्टैकिंग वगैरह, ठीक है। सो इट्स अ सिंपल कॉन्सेप्ट गेम बिकम मोर चैलेंजिंग जब आपका स्टैक जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल इसकी स्टैक ही गेम ग्रोइंग में अगर IO.io से आप, it's a start small and become bigger competitive। जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो जितने भी प्लेयर होंगे वो टाइम्स 3 हो जाएंगे, प्लस 80 करोगे तो जितने भी प्लेयर होंगे वो प्लस 80 हो जाएंगे। जैसे जैसे ये भी ग्रो करता जाता है वैसे वैसे ये कॉम्पिटेटिव होता जाता है हमारे लिए। ड्राइंग में आप कुछ भी ड्रॉ करते हो, कोई इट्स समथिंग लाइक आप कुछ ऊपर फिगर दे दी जाती है एंड देन यू नीड टू ड्रॉ दिस, और अपना चैलेंज जो है वो कंप्लीट करना होता है। इट्स वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव गेम, और इट्स एजुकेशनल, यूजुअली इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिमुलेशन लाइक फॉर एग्जांपल बिट लाइफ, जिसमें हम सिमुलेटेड करते हैं रियल लाइफ एक्टिविटीज सिनेरियोज इन अ सिंपल वे। सिंपल डिसीजन मेकिंग एंड इजी टू प्ले कैन इन्वॉल्व ह्यूमर एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स इसमें आते हैं, क्योंकि कोई भी लाइक रिएक्शन वगैरह कर रहे होते हैं गेमों में तो कुछ भी आ सकता है। खैर, इट्स टाइम फॉर फन एक्टिविटी। let me show you an activity you need to do. This is a Lego builder, Lego builder app. So खैर, आपने क्या करना है, आपने अपनी क्रिएटिविटी वगैरह शो करवानी है और इसमें आपने डिफरेंट डिजाइन वगैरह बनाकर दिखाने हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मुझे कोई कहता है कि अभी मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कोई डिजाइन तो बना कर दिखाओ, तो खैर चले शुरू करता हूँ। हम्म, एनीवन कैन गेस ये मैंने क्या बनाया, क्या बनाया बताओ। मैसेज में बताओ, मैसेज में, चैट्स में बताओ। नो वन कैन गेस।
इट्स अ सिंपल करेक्टर। सो अगर कोई ज्यादा क्रिएटिव है वो इससे ज्यादा अच्छा करेक्टर बना सकता है, uh, और भी अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकता है। लेट मी टेल यू कि चलो यार देखते हैं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज जस्ट द प्रोटोटाइप जो मैं, एक खास नहीं वैसे इतनी आम सी बनाई है। यू नीड टू क्रिएट द प्रोटोटाइप्स वेयर, आपको बनानी पड़ेगी जब आप पजल टाइप गेम्स बना रहे होंगे, ठीक है, और सम अदर गेम्स। तो सबसे पहले अगर आप जब जहाँ गेम वर्क करते हैं उस प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, सो यू मस्ट नीड टू क्रिएट द प्रोटोटाइप। जितना प्रोटोटाइप इज वेरी नेसेसरी फॉर game development or game design. So, okay, chill. It's a fun time. I am going to share this link in your chat, and it's a request. आप लोग भी अपना अपना डिजाइन बनाएं और ग्रुप में शेयर करें ताकि हम एक GDSC की तरफ से एप्रिसिएशन, जिसका भी सबसे अच्छा होगा एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सकें। I have shared it in official WhatsApp group. Go to the WhatsApp group or make funny or creative design. So show us your creativity and then send the picture or screenshot just to the WhatsApp group, discussions WhatsApp group, and then we will access के कौन जो है सबसे ज्यादा creative है, and then उसको appreciation certificate देंगे। तो you have just 5 minutes, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा अच्छी creativity शो करवा सकते हैं। Creativity is very necessary for game because in game if you want to join the research field तो आपको creative होना पड़ेगा। We have just 5 minutes. Musa, I think we can continue with the session and Continue. we can, Okay, after. yes, Okay, we will okay. we At will the review end of. all the submissions at the end. So all of Okay, you at the guys end. are really, you can send all of your submissions to the discussion group and we will see them and give you feedback on them. Okay, okay. So show your creativity at the end of the session. Screen नजर आ रही है आप? Yes, yes, we had. Okay. AI is very immersive in every field. Uh,
जो भी फील्ड है वो एआई विद एआई बनने जा रही है और बन भी रही है। सो यू कैन हेयर डेव इन एआई, जो कि पूरा पूरा सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देगी। सो एआई ने क्या किया जी, एआई ने हमारे लिए बहुत इजीनेस वगैरह क्रिएट कर दी है। AI enhances the gaming experience by creating more realistic and challenging environment. So AI helps a lot in this game development or game design professions. Okay, so AI हम गेमिंग में AI से कोडिंग वगैरह अपने कोड के स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं चैट जीपीटी से। इफ यू थिंक यू आर weaker in coding, so no issue, so it's not a issue। so आप क्या करो, चैट जीपीटी पे जाओ, उससे स्क्रिप्ट लिखवाओ और देन उसके कॉपी पेस्ट करो यूनिटी पर और अपना काम चलाओ। सो काफी इसने इजीनेस भी पैदा की है हमें। वो टाइपिंग जो है उससे जान छूट गई है, जो टाइपिंग से बहुत घबराते थे वो भी जीपीटी यूज करते हैं और कोडिंग करते हैं। सो इन दिस रिस्पेक्ट मतलब एआई ने हेल्प की है काफी इन आवर गेम वर्क। सो वॉइस एक्टिंग इज ऑल्सो नीडेड इन गेम डेवलपमेंट। हमें अगर कोई चीज जैसे अपनी गेम में कोलाइड करती है या कोई भी चीज लाइक वॉइसेस होती हैं गेम्स वगैरह में, साउंड्स होती हैं, ये भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जनरेट खुद कर देता है। सो वी डोंट नीड एनी मोर वॉइस एक्टर, नो। ठीक है, एआई जो है वो खुद जनरेट करता है और हमारे लिए आसानी करता है। जो भी हम बनाना चाहते हैं वॉइस उस तरह की उसको देते हैं प्रॉम्प्ट और उससे हम वॉइसेस बना लेते हैं। एआई जो है वो मॉडलिंग मॉडलिंग इज वेरी नेसेसरी इन गेम डेवलपमेंट। आपने मजे से मजेदार करेक्टर बनाने होते हैं, जैसे कोई भी गेम वगैरह में, ठीक है, प्लेयर वगैरह बनाते हैं कलर करेक्टर। सो वो भी अब एआई बेस्ड करेक्टर बन गए और एआई बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर बनाता है, आपका टाइम वगैरह बचाता है। यू डोंट नीड टू पे एनी मोर मॉडलर के वो करेक्टर बनाए और ये सब चीजें करे। एनिमेशंस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो एनिमेशंस भी आपको करना पड़ता है काम। सो अभी यूनिटी में क्या है जी, आप ऐसी ऐसी एनिमेशंस वगैरह, यूनिटी इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको बताया जाएगा कल के सेशन में बाय लेट मोहम्मद हुजैफा। यूनिटी और अनरियल इंजन वगैरह प्लेटफॉर्म का, उसमें हम एनिमेशन ऐसे ऐसी बनाते हैं कि देन उस एनिमेशन से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ये अगर कोई एक आने वाली नई टेक्नोलॉजी है वो इसे अगर वो रियल वर्ल्ड में होगी तो वो कैसे लगेगा। लाइक रियलिस्टिक इफेक्ट देती है ये एनिमेशन जो है, ठीक है, एआई की। सो ये देखें इसने मतलब कितनी इजीनेस हमारे लिए कर दी है। टाइम बचा दी है, जल्दी से कोड बनाओ, पैसे बनाओ, कोड बनाओ, गेम बनाओ एंड उसको मार्केट में लाओ, पैसे बनाओ। अब तो ये चीज रह गई है। सो ओके, लेट अस मूव टू द गेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो इट इज ओके, मतलब गेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या आएगा, मतलब कि हम एक आइडिया लाएं कि गेम बनानी कैसे है, ठीक है, एंड देन उसको क्या करें, एक कंसेप्ट लाएं और उसको रिलीज करते हैं। रिलीज मतलब मार्केट तक। ये लाइफ साइकिल में हम देखेंगे कि कंसेप्ट से रिलीज तक क्या होगा, ठीक है। गेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस में क्या आएगा, पहले आपके पास कोई आइडिया है तो वो शेयर करोगे आप, या खुद लेकर बैठोगे कॉपी पेंसिल पर, एंड देन उस आइडिया से को आप डिजाइन में ट्रांसफर करोगे, एंड देन उसका एनालिसिस करोगे, देन आप उसमें कोडिंग शोडिंग करोगे और करेक्टर वगैरह डालोगे, प्रोटोटाइप बनाओगे, देन उसको आप टेस्ट करोगे। इफ देयर इज अ बग यू विल रिमूव इट एंड देन एट द एंड यू डिप्लॉय इट इन सम प्लेटफॉर्म और सम डिवाइसेस, देन आप उसको खेलोगे। सो थ्री स्टेजेस आर इन्वॉल्व। प्री प्रोडक्शन, जिसमें वही गेम आइडिया वगैरह आ जाता है, आर्ट आ जाती है इसमें, प्रोटोटाइपिंग की मैकेनिक्स आ जाता है, बजट देखते हैं इसमें हम, एंड देन प्रोडक्शन इज आल्सो द स्टेज इन दिस गेम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने डेवलप करना होता है गेम कोड को, क्रिएटिंग और इंटीग्रेटिंग आर्ट
म्यूजिक वगैरह देखना होता है साउंड में, मतलब गेम के अंदर पूरा जो कह लिया आपके आपने किस्म का काम शाम होता है, ठीक है। एंड देन इसी के अंदर टेस्टिंग वगैरह भी हम करते हैं, ताकि क्वालिटी इंश्योरेंस टेस्टिंग करते हैं, बीटा टेस्टिंग भी होती है। दीज आर जस्ट द टाइप ऑफ टेस्ट एंड नो नीड टू वरी। सो अपने आइडेंटिफाई कर सके हम बग्स को और एरर्स को। उसके बाद एट द फाइनल स्टेज पोस्ट प्रोडक्शन होती है, जिसमें हम सिर्फ लॉन्च करते हैं अपने गेम टू द पब्लिक। और देन उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, सॉरी, लॉन्च में लॉन्च करते हैं तो उसको प्रमोट वगैरह भी करना पड़ता है, ठीक है। सो मतलब गेम इज अवेलेबल टू परचेज और डाउनलोड बाय द प्लेयर। सो द लास्ट वन इज द पोस्ट प्रोडक्शन में जो आता है वो पोस्ट लॉन्च होता है, जिसमें हमें प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट, उनसे फीडबैक लेने होते हैं और प्लानिंग फॉर फ्यूचर प्रोडक्ट वगैरह करनी होती है। So this development life cycle, game development life cycle is a process that guide a creation of game from idea to launch. Uh, okay. Game publishing is very important phase. आपने गेम तो बना ली, नो इट्स टाइम टू लॉन्च इट इन मार्केट। कैसे करोगे? सो व्हाट यू कैन डू, आप इसको सेल्फ पब्लिश कर सकते हो, और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है विद पब्लिशर, या उनके साथ आप काम कर सकते हो, पब्लिशर्स के साथ, और अपना एक एग्रीमेंट टाइप उनसे आप लिखवा सकते हो। बट सेल्फ पब्लिशिंग और पब्लिशिंग विद पब्लिशर हैव देयर ओन प्रोस एंड कॉन्स। अगर आप सेल्फ पब्लिशिंग देखते हैं तो डेवलपर जो है, इसका प्रोस तो ये कि मतलब कंप्लीट कंट्रोल अपने गेम को कर सकते हैं, और मतलब उसको किसी के साथ अपना रेवेन्यू वगैरह किसी पब्लिशर के साथ जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फ्लेक्सिबल होता है जो गेम डेवलपर होता है, अपना टाइमलाइंस वगैरह और मेक डिसीजन वगैरह क्विकली कर सकता है, ठीक है। लेकिन देयर आर कॉन्स, क्योंकि अभी वो नया नया अगर बंदा डेवलपर है, सो दे नीड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी चाहिए, टाइम चाहिए अपनी गेम को फिर ऊपर मार्केट लेवल में उसको एडवर्टाइज करने के लिए, ठीक है, या गेम बनाने के लिए बड़े रिसोर्सेज चाहिए। और देन रिस्क भी होता है कि अगर गेम सही ना बिकी या सही ना चले तो वो सारा लॉस होगा। सो दिस इज द कॉन्स। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो अपनी गेम बनाए, सोशल मीडिया पर लगाए, और वो तो बड़ी जल्दी मतलब सेल हो जाएगी। सो इन पब्लिश विद पब्लिशर व्हाट यू विल डू, मैंने जैसे आप पहले ही बता दिया कि आप एक एग्रीमेंट करेंगे पब्लिशर के साथ, और उसको गेम को सेल आउट कर देंगे, और उसके साथ कोई शेयर हो सकता है। लाइक एवरी पब्लिशर हैव सेट देयर ओन ट्रेंड कि मैं इतना शेयर या आपके साथ करूंगा, या इतना ही हो सकता है। सो इसके भी बड़े प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। सो इसका प्रोन्स तो ये है कि जो रिसोर्सेज मतलब फाइनेंशियली हमें चाहिए होंगे, वो आपका पब्लिशर वगैरह प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। पब्लिशर जो होते हैं वो पहले से बड़े बड़े पुराने होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, सो उनका एक लार्ज सर्कल होता है, सो उनके बड़े एस्टेब्लिश कनेक्शन होते हैं विद मीडिया इन्फ्लुएंसर। सो जो गेम होती है वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंचती है। जितनी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचेगी, उतना वो देखेंगे, उतनी वो गेम जो है डाउनलोड करेंगे, और उतनी ज्यादा गेम चलेगी, जितनी ज्यादा गेम चलेगी उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और पब्लिशर जो होते हैं वो सपोर्ट भी करते हैं थ्रू द डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके कॉन्स भी होते हैं कि ये है कि पहला तो आपको अपना जो इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, वो आपको शेयर भी करना पड़ेगा पब्लिशर के साथ। अ, वो तो एग्रीमेंट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया होता है। और डिपेंडेंट हो जाते हो ना आप एक किस्म का पब्लिशर के ऊपर, और इसके अलावा कोई कंफ्लिक्ट आ गया तो कुछ भी हो सकता है। सो डेवलपर जो होता है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑन क्रिएटिव डिसीजन, जैसा फिर कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो पब्लिशर चाहता है उसी तरह का हमें बनाना पड़ता है, ठीक है। पब्लिशर हो सकता है हमसे प्रोटोटाइप बनाए, हम कुछ बनाए, वो कुछ डिमांड कर रहा हो, ठीक है। सो इन सब चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। दैट्स ऑल। होप यू एंजॉय दिस सेशन। मज़ा आया होगा। सो इन टुमारो सेशन
हुजैफा विल टेल यू के क्या स्टेजेस हैं। आपने अगर गेम्स डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो पहले डॉक्यूमेंटेशन आपने कैसी बनाती है ये आपको कल के एजेंडे में पता चल जाएगा, और हुजैफा विल एलेबोरेट मोर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सेशन you can ask freely.